आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज वीडियो में लेकर आए, इसका टाइटल है 5.5 मिनट में ही माहिरा खान फ्रॉम छत्तीसगढ़ फॉर सिक्योरिंग थर्ड पोजीशन इन दी एनवाईपी फेस्टिवल 2023। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, जानते हैं कि एनवाईपी फेस्टिवल क्या है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। इनके चैनल को चैनल का लिंक इंस्टाग्राम के लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बढ़े चलो यही निदाए वक्त है, ये कायनात, ये ज़मी, ये कहकशा का रास्ता, इसी पे गामज़न रहो, अमन की राह पर चलो। जब जब दहला विश्व हमारा और जब जब बेमकसद खून बहा, चीन, रूस, जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। My warm greetings to dignitaries. I am Mahira Khan from Chhattisgarh and I am here to speak on the topic of peace building and reconciliation, ushering in the era of no war. Taking pride in India's history is one of the parch prans given by the Prime Minister in the age of Amrit Kal. And looking back at history, it is a proof that India has always been a harbinger of peace. No war does not mean that we have no reason to fight war. It only means that we give importance to peace by following values of compassion and forgiveness. It was the value of compassion that even after winning the war in Kalinga, Samrat Ashok decided to never wage a war and spend his entire life to preach the message of peace to countries as far as Greece. It was the value of forgiveness that even after the British sent our soldiers to world wars and our farmers to famines, Mahatma Gandhi still chose ahimsa and satyagraha for independence. Taking inspiration from India, Nelson Mandela also chose to forgive the apartheid regime in South Africa. My dear audience, like this year's theme, India for the World, India not only preaches but also practices Vasudhaiva Kutumbakam. In India's G20 presidency, we advocate for a multilateral world in which no one country dominates another country. When China dominated Indo-Pacific, India rushed to help and support ASEAN countries. It acted east. When Sri Lanka needed loans, India was the first to give assurance to IMF. It showed that we believed in neighborhood first. And when Turkey, Syria were hit by deadly earthquakes, India rushed for their aid. It showed our brotherhood. Remember, in 1945, after testing the first atomic bomb, Oppenheimer quoted from Bhagavad Gita, "Now I have become death, the destroyer of worlds." And soon after that, the bombings in Hiroshima and Nagasaki, it was proved that the world does not need a war for peace, but it only needs one war, and that is the war against war itself, exactly what Mahatma Gandhi used to preach. हमें युद्ध के खिलाफ एक वास्तविक युद्ध की ज़रूरत है. And that's why all of us need to unite for one single cause, our planet Earth. The conflicts in West Asia, Africa, and the constant quest for world dominance between USA and China are doing no good for sustainable and equitable development. And this is worse even in the post-COVID era, something which we cannot afford. And in this circumstance, the world looks at India to find peaceful negotiation and conciliation in the midst of Russian-Ukraine war. As the voice of Global South, we believe that few rich countries which have caused maximum war and pollution in the last century should pay for their mistakes by helping and not holding back technologies from poor countries. I understand that we might be divided by borders, but we believe that our culture, sports, and ideas could unite us. And in this condition, the world looks at International Solar Alliance for an equitable solution to green energy transition.
Our jawar, bajra and ragi are being celebrated as superfoods in world today. And the world looks at Ayush for a healthy lifestyle. My dear audience, when one youth from Naxal affected area of Abujmar in Chhattisgarh can strive and participate in international football, it inspires so many of us to strive for a home that is free of conflict and full of opportunities and growth. In each of us lies immense ability to solve any internal or external conflicts through peace, passion and compassion. बढ़े चलो यही निदाए वक्त है, ये कायनात ये ज़मी ये कहकशा का रास्ता, इसी पे गामज़न रहो, अमन की राह पर चलो। थैंक यू सो मच। भाई इस 5 मिनट की स्पीच में अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया के जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, बेशक वो वॉर को लेकर देखा जाए, टेक्नोलॉजी को लेकर देखा जाए या किसी भी डिस्ट्रक्शन के सिनेरियो में देखा जाए, उन्होंने वो 5 मिनट में वो सारी चीज़ें जो है वो बयां कर दी हैं। मैं ये कहूँगी कि उन्होंने अपनी इस स्पीच में जियोपॉलिटिक्स को लेकर और इंडिया का क्या रोल है आज के टाइम में और एंशिएंट इंडिया में किस तरह से जो रूलर्स है उनका एक रोल रहा है पीस को लेकर और अपने कल्चर को लेकर, वो सब चीज़ें उन्होंने अपने हाँ बिल्कुल स्पीच में जो है वो बताई हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं कहती हूँ कि हम लोग हर दिन जो नई वीडियो देखते हैं कुछ नया सीरियसली सीखने को मिलता है और मैं ये चीज़ एडमिट करने पर मजबूर होती हूँ कि वाकई इंडिया इतनी प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं और जो चीज़ें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं यूथ को लेकर वो काबिल तारीफ हैं। और अब अगर हम NYP की भी बात करें तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में, हमने इसके बारे में डिटेल्स निकाली तो हम लोग को आइडिया हुआ कि ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है। और अगर 2023 का जो थीम है उसकी बात करें तो उसका थीम है आइडियाज फॉर ए बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड, यानी कि ये कंप्लीट थीम है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन किया जाए और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको इस चीज के बारे में बताया जाए कि पार्लियामेंट में कैसे काम होता है। यानी कि जैसे अभी एक तरह से एग्जाम जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि क्या मुद्दों पर बात होती है, किस तरीके से जो है वो मतलब चीजें जो है वो चलती हैं। तो मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी और आइडिया, और सीरियसली मैं पढ़ती जा रही थी और मुझे ये चीज रियलाइज हो रही थी कि क्यों ना हमें आने वाले टाइम में जब अभी हम देख रहे हैं तो इंडिया जो है वो ऊंचाइयों पर नजर आए, क्योंकि आज के टाइम में वो इतनी ज्यादा एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है और इतनी राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है अपनी यूथ को लेकर कि ये इम्पॉसिबल है कि आने वाला टाइम अगर हम ना देखें कि इंडिया जो है उसमें हमें तरक्की करता हुआ ना नजर आए। यार बात वही आ जाती है कि आप अपनी जो है बुनियादें किस तरह रख रहे हैं। अगर इस टाइम अगर हम बात करें तो आप देखें तो इंडिया में जिस फर्म में भी आप देखें आपको जो है उसकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो नज़र आएंगी। अभी जैसे जो हमने एक जो डिबेट सुनी है उस जो यानी कि जो फेस्टिवल एक पूरा जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। हर यानी कि बच्चे की ख्वाहिश होती होगी कि भाई वो अपने आप को यहाँ पर जाके रिप्रेजेंट करे और अपना जो अंदर का एक जो है वो या उसके बाद कोई आइडिया है वो दुनिया के सामने जो है लेकर आए। ये क्या नाम लेते हैं एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि भाई देखा जाए संसद टीवी जो है ये इंडिया का जो है एक नेशनल टीवी जो पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट की जितनी भी आपको अगर देखने को मिले तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंने जो है काफी ज्यादा देखा है पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजें जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ओके, और इस फेस्टिवल की अगर बात करें तो मतलब जहां तक लिखा हुआ है ये 4th एडिशन है। इट मींस के जो इससे पहले 3 हो गए है उसी के टाइम पर ये जो चीजें हैं वो स्टार्ट की गई हैं। तो मुझे देखो ये चीज बहुत अच्छी लगती है अगेन के जो रूलिंग पार्टी है उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो किस तरीके से यूथ को यूटिलाइज करेगी आने वाले टाइम में। और यही वो लोग हैं जो आने वाले टाइम में आपको पॉलिटिशियंस भी नजर आएंगे, आपको पार्लियामेंट के मेंबर भी नजर आएंगे, वो आपको टेक्नोक्रेट्स भी नजर आएंगे। तो डेफिनेटली जो चीजें हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जो मतलब आप कह लें कि जो नई जनरेशन है वो समझेगी भी और उनको पता भी होगा कि हमारी कंट्री के क्या मैटर्स हैं, दुनिया के साथ किस तरीके से हम लोगों ने चीजें जो है वो कोलैबोरेट कर चलना है। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा ये आइडिया लगा है और जिस तरीके से उन्होंने बीच में हम कहेंगे कि अपनी स्पीच दी और अपनी अगर एक तरह से देखा जाए अपनी ओपिनियन, अपनी
हिस्ट्री के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में जो चीज़ें हैं वो बताई। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इस तरह के और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने स्पीच दी होगी और अपने अपने पॉइंट्स जो है वो सामने रखे होंगे। डेफिनेटली हर किसी का एक अलग अलग हम कहेंगे पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और मे बी वो इस तरह का हो जो कि एक इंसान से मिस हो गया है और दूसरा जो है वो उसको सामने रख रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है ना, वो ये कि अगर हम अभी की यूथ की बात करें तो उनको ये चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से मतलब जो एक मैसेज कन्वे किया गया और जो वो आगे मैसेज दे भी रहे हैं वो ये कि मतलब द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब इवन कि हमें हर दूसरी तीसरी वीडियो में ये मैसेज जो है सुनने को मिलता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उनके दिल में सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपने कंट्री को लेकर चलना है, जैसे उन्होंने अपनी स्पीच में भी बोला कि बहुत सारे ऐसे देश जो कि इतने अच्छे नहीं है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इंडिया उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और मुझे लगता है कि लीडर वो ही होता है जो कि आपको बुरी सिचुएशन से अपलिफ्ट करता है। लीडर एक रीजन का वो नहीं होता जो कि आपको डेथ ट्रैप में फंसा कर रखता है। सो देखा जाए तो बेसिक चेंज जो डिफरेंस मुझे नजर आता है इंडिया और चाइना में, वो यही नजर आता है। यार फिर वही बात आ गई कि इस जो छोटी सी 5 मिनट की स्पीच हमने सुनी है, इसमें जो पूरी दुनिया के जो अभी हालात हाजरा हैं उन सब का जो जिक्र किया गया है। अच्छा, वैसे इस फेस्टिवल में एक चीज़ ये भी मुझे अच्छी लगी कि आपको पार्लियामेंट में जो है बुलाया जाता है, क्योंकि मोस्टली जो है मैंने एक चीज़ देखी, पार्लियामेंट में जो है आम लोगों का दाखिला जो होता है वो नहीं होता। ठीक है, तो आप देखिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, वहाँ पर जो है उन्हें विजिट अगर करवाया जा रहा है और खड़े होकर एक कॉन्फिडेंस, यानी कि स्पीच कर रहे हैं तो उन्हें एक कॉन्फिडेंस जो है वो दिया जा रहा है। बिल्कुल मैं ईमानदारी से एग्री करूँगा कि आने वाले टाइम में बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स, बहुत सारे IAS जो हैं, IPS जो है वो इन्हीं स्टूडेंट्स में से जो है वो निकल कर आगे आएंगे। और लिटरली जब लोग जो है नीचे से स्टार्ट करते हैं तो उन्हें एक चीज़ का आइडिया होता है कि हमारे जो माशरे के मसाइल हैं वो क्या हैं, हम उसे किस तरह जो हैंडल कर सकते हैं। अब रातों रात तो कुछ हो नहीं जाता भाई, जनरेशन्स जो हैं वो लगती हैं आपको जो है वो चीज़ें बेहतर करने में। तो अगर इंडिया की बात करें तो अगर 1947 से लेकर अब तक की बात करें, क्योंकि 1947 से पहले का तो अगर मैं छोड़ भी दूं, अब की बात करें तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेहतरी जो है वहाँ पर नज़र आती है। बेशक वो आप वहाँ की पॉलिसीज़ की बात करें, बेशक आप जो है दूसरे कंट्रीज से रिलेशंस की बात करें, इवन कि अगर मैं चाइना के साथ भी बात करूँ, इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन ट्रेड की अगर बात करें फिर भी उनकी वो चल रही है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो अपने इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं या दूर भी हैं उनके साथ एक बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हुए है। ये इसी को तो बोलते हैं डिप्लोमेसी, के आप किस तरीके से और कितनी वाइजली चीज़ों को हैंडल करते हो। और जैसे मौजूद ने पार्लियामेंट की बात भी की, तो मुझे लगता है कि वाकई में इजी एक्सेस नहीं होती एक आम इंसान की, लेकिन इस तरीके से एक्सेस देना गवर्नमेंट की वो फ्रूटफुल रहेगी आने वाले टाइम में। और मुझे लगता है कि ऐसी एक्सेस जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट लेवल पर भी बहुत सारे आप ये कह लो कि उनको कैंडिडेट्स ऐसे मिलते हैं जो कि आने वाले टाइम में कंट्री के लिए जो है वो बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिहाज से किस किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है या होता है। लाइक अगर देखा जाए जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको मतलब वो क्या किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, चूज किए जाते हैं या नहीं किए जाते, आने वाले टाइम में जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर्स, गुड बाय।